Good morning to all. I am Love Sunny from Dronacharya Global Institution going to take a seminar on data science. So, agenda for today is why are data science, what data science, and who are data scientists. All will discuss in this presentation, and about what are libraries or modules Python used in data science. Data science steps involved. What are steps are involved in data science, advantages, and some examples that are will discuss in this presentation or seminar. So first question is why data science? The most abundant thing today is data. That we have data about everything, which is increasing multifold every day. We have type of where there are various type of data: structured data, data warehouse, bidirectional data, predetermined reports only, which can be handled by various type of applications. For example, Hadoop, data science algorithms, and scientific discoveries. Data warehouse is a big amount of data in which many companies, or you can say Google has its own data warehouse in which a lot of amount of data can be stored. Bidirectional data are those data in which we analyze or predict the values or output by using the graphical formats in which data science algorithms are used. Then what is data science? Before going to data science, I will tell you about most interesting fact about data science. Basketball team are using data for tracking team strategies and outcomes of matches. Before parameter will be used, below parameters will be used for the जो बास्केटबॉल टीम है उसने ट्रैक डेटा कलेक्ट करा स्ट्रेटजीज और आउटकम ऑफ मैचेस को इम्प्रूव करने के लिए. ये सारे उसके आउटकम्स थे. एवरेज पास टाइम ऑफ बॉल, नंबर ऑफ सक्सेसफुल पासेस, स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ सक्सेसफुल पासेस, कितने बंदे ने कितने टाइम में पास करा, नंबर ऑफ बास्केट कितने सक्सेसफुल हुए जब से थ्रो करी प्लेयर ने, और स्पीड और एक्यूरेसी कितनी थी बास्केट सक्सेसफुल होने की, और नंबर ऑफ कोड द प्लेयर ऑन एवरेज शाउटिंग, कितने बंदे थे कोर्ट के अंदर प्रेजेंट और एरिया कितना था. ये सब कुछ ये हमने डाटा साइंस की मदद डाटा साइंस एल्गोरिथम की मदद से हमने प्रेडिक्ट कराई. ठीक है, ये पैटर्न डिस्कवर हुआ जिसकी वजह से प्लेयर के यहाँ इम्प्रूव करा, और ये फैक्ट बात है. नाउ व्हाट डेटा साइंस? डेटा साइंस बेसिकली अ प्राइमरी यूज्ड टू मेक डिसीजन एंड प्रेडिक्शन, जिसकी मदद से हम मेक कर अपना डिसीजन और प्रेडिक्शन को और बेहतर बना सके. ओके, डेटा साइंस is the study of natural things. We extract knowledge for better decision making and prediction. Between study of natural things and extract the knowledge, we can extract the knowledge by using the programming language, that is a C or R language. The most common language we use is Python because it have modules that are easily available and easily reliable through Python. We can easily match up with Python. So with data science, as I've discussed, is a data-driven science. It is an interdisciplinary field about data method, process, and system to extract knowledge from data. In the either structure, the data can be in either structure format or unstructured format. These are the duties of data scientist: collect the large amount of unusually data and transforming it into a usable format. Solving a business-related problems using data-driven techniques. Have a solid grasp of statistical, including statistical and test distribution. Communication collaboration with both IT and business sectors. Who are data scientists? Data science can be 20%. It should be have 20% knowledge of computer science, 18% or 19% knowledge of mathematical. It should be an average person in mathematical and statistical model. Economical and social science is also required. Data science analysis 30% required. Natural science should also be so that it easily predict and analyze the data. Engineering field it may be required. Another 10%. Now, who are data scientists? The three main objective, or you can say main field, that is mathematics, business, and information system, are required because mathematical use statistical discrete math, information theory, combination and decision theory, and as well as machine learning. These are the major advantage of mathematics. Without this, you cannot become data scientist. Business, economical, finance, marketing, operating, and management. These are the core branch of business. Okay, then information system is required.
In information system, we use computer science as well as software engineer and system development. In this, we use programming and software to make data scientists. As you can see, 42% technology is used, rest at industrial and financial and healthcare in data science. This is an example of application finance, in which we're predicting the result by using the graphical method, or you can say pattern matching, by using data science algorithm. A role of data scientist: the scientist will be responsible for designing and creating process and labor out complex scale, large scale data set for modeling and mining and research purposes. Responsibilities: data mining using state of the art method, processing, cleaning and verification the integrity of data for analysis, building predicting model using machine learning algorithms. Okay, now we'll talk about the steps involved in data science. First one is the discovery, and then we have a data preparation, then model planning. Fourth one is model building. Fifth one is optimization, operationalization, in which we finalize the result or check the accuracy. And the sixth but not least, we check the result and communicate. Discovery means we collect the data from input and output externals. In data preparation, we fill the missing values and convert the data in the proper and appropriate manner. In model building, we choose the algorithms that should be beneficial for data and the quality should be maintained. And the fourth one, model building, we build the model and test and train the model. In the fifth step, we see the accuracy. Is accuracy is above or not? Is the accuracy is up to the mark or not? As I've discussed that, in which we acquire the data from all the identified internal and external sources that can improve the business. This data can be logged from web servers, social media, from anywhere, okay, and the API also. This is the data, okay. This is an example of data set in which attribute is given. You can see NPG, glucose, BP, skin, BMI, PEG, age, income. These are the attributes, but it is not in a proportionate manner. If a person he cannot analyze that what is it, and the machine cannot. So all the things have to do by machine, not by us. Okay. So machine can and cannot, but we can do in a proper. If you want to do in a proper format, the next step is pre-processing can be done in it. In data preparation, we clean the data, do the data in a proper appropriate manner. हम डाटा को जो है appropriate manner में लाएंगे, उसके मिसिंग वैल्यूज फिल करेंगे, इनकंसिस्टेंट वैल्यू को रिमूव कर देंगे. ये सब होता है डाटा प्रिपरेशन के अंदर. जो भी हमें रिक्वायर होता है प्रीप्रोसेसिंग कंडीशन, जिसके डाटा की जो क्वालिटी है वो एक्यूरेट आए और जो हमारा रिजल्ट है हम उसको अच्छे से बिल्ड कर पाए. आप इसे देख सकते हो, जो रेड से इंडिकेट कर रखा है वो मतलब मिसिंग वैल्यूज हैं. रेड से इंडिकेट जो कर रखा है वो मिसिंग वैल्यूज हैं. इसको हम रिमूव कर देंगे. जैसे इनकम दिख रहे हो आप, इनकम जो है बिल्कुल ही ब्लैंक कॉलम है, ये इनकंसिस्टेंट डेटा है, तो इसको हम बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं. ब्लैंक कॉलम को रिमूव कर सकते हैं और जो रेड से मार्क कर रखे हैं बीच में वो नल वैल्यूज हैं, उसको हम फिल कर सकते हैं. फिल करेंगे मशीन लर्निंग डाटा साइंस एल्गोरिथम से. जो देख सकते हो ग्रीन में मैंने लेबल कर दिया वैल्यूज को, और जो इनकम का कॉलम था वो मैंने रिमूव कर दिया बिल्कुल ही, क्योंकि उसका वैल्यूज नहीं थी. और ये डेटा में इनकंसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा. अगला है मॉडल प्लानिंग. इसके अंदर मॉडल प्लानिंग करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे और जो हम रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आए, वो अच्छे से हम प्रिडिक्ट कर पाए. इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, SQL, R, Access, ये सारी लैंग्वेज यूज होती हैं. डिटरमाइन करते हैं मेटा टेक्निक्स को टू ड्रॉ द रिलेशनशिप बिटवीन दैम. ओके. और ये हमारा आता है विजुअलाइजेशन. ये हम इसके थ्रू कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब. पाइथन का एक मॉड्यूल है मैटप्लॉटलिब, हम उसके थ्रू कर सकते हैं. ये सब अगर आपको एक ही बार में चाहिए तो आप एनाकोंडा इंस्टॉल करोगे. एनाकोंडा के अंदर एक जुपिटर नोटबुक होती है, उसके अंदर ये इनबिल्ड होते हैं फीचर्स. और वैसे अगर आप पाइथन का तो बेसिक वर्जन यूज करते हो तो आपको फिर डाउनलोड करना पड़ता है. हम इसकी वजह से एनालाइज करते हैं डेटा को कि हमारा जो डेटा है वो कितना बड़ा, कितना डिक्रीज हुआ. जैसे स्टैटिस्टिक्स होती है मैथ्स में, वैसे ही एक तरह से ये है. इसके अंदर डेटा हम
एक तरह से देख सकते हैं कि हम डेटा कितना इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा जो एल्गोरिथम कितना अच्छी एफिशिएंटली वर्क कर रही है प्रेडिक्शन के लिए। फिर फिर आता है मॉडल बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। मॉडल बिल्डिंग स्ट्रेटजीज में क्या होता है, इसके अंदर हम वेदर एग्जिस्टिंग टूल विल सफर फॉर रनिंग द मॉडल, एनालाइज वेरियस लर्निंग टेक्निक्स लाइक क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग टू बिल्ड द मॉडल। कॉमन टूल्स फॉर मॉडल बिल्डिंग, इसके अंदर क्या होता है, बेका होता है, आर और पाइथन पैकेज। पाइथन मोस्टली हम पाइथन और आर लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो डाटा है और वो लैंग्वेज हम इजीली मैचअप कर पाए, कैचअप कर पाए। ओके, जो पाइथन है मोस्ट प्रॉब्ली पाइथन ही यूज करते हैं, क्योंकि पाइथन इजीली कैचअप कर पाते हैं। और ये है डिक्शनरी बेस्ड। इसके अंदर क्या होता है, हम इजीली इससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस बंदे को देना चाहिए, अब इसमें ये शो कर रहा है डाटा डिसीजन ट्री बेस्ड ग्राफ, जैसे कि उसकी BMI जो है वो इतना कम है तो नेगेटिव में, अगर उसका इतना 30 से बड़ा है तो मतलब पॉजिटिव है, ये शो कर रहा है। और एज के हिसाब से अगर 28 एज से एज उसकी अगर 28 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये शो कर रहा है कि इस हिसाब से हम डिसीजन टी बना सकते हैं और इस हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत बेटर डिसीजन। फिर रिजल्ट आ गए हमारे, रिजल्ट के अंदर हमने वही जो नॉलेज हमने ग्रैब करी है वहाँ से उसका हम रिजल्ट देखते हैं, एक्यूरेसी कितनी आई। अगर वो अप्रॉक्स 1 के आसपास रहती है तो इसका हमारा जो डेटा है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो उसकी प्रेडिक्शन होगी वो अप टू द मार्क हो सकती है। और हाँ, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ही अच्छा हमारा रिजल्ट होगा डेटा सेट में। द मोर द डाटा सेट द मोर एक्यूरेट विल बी द रिजल्ट। जैसे देख सकते हो ये डायबिटीज पॉजिटिव सेट है, इसी तरह ग्लूकोज का इतना है, ग्लूकोज जो है 145 से अबव है तो पॉजिटिव है, अगर वो ग्लूकोज 145 से, ये सब कुछ हमारा डेटा है। हम इसकी वजह से यूज बता सकते हैं कि किस बंदे को डायबिटीज हो सकती है और किस बंदे को नहीं हो सकती डायबिटीज। ठीक है, और ये अप्रोच है टू सिलेक्ट एल्गोरिथम्स। बेसिकली 5 टाइप्स से अप्रोच होती हैं हमारे पास जिससे हम यूज करते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम जिसके अंदर हम यूज कर सकें, फिट कर सकें एल्गोरिथम्स को। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स कभी यूज होती हैं जब हम जो डाटा की हम वो देख नहीं पाए कि कौन सा डाटा किसके मैच कर रहा है, किसके साथ मैच कर रहा है, किससे नहीं कर सकता, तो भी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स जो होती हैं वो एक पॉइंट पे देखती हैं कि कौन सी लाइन पे ये डाटा इसका मैच कर रहा है और किसके रेंज में आ रही है। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम तब यूज होती हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक तरह से क्या कहते हैं, रिवॉर्ड बेस्ड होती है कि रिवॉर्ड हम जो हमने टास्क करा उसका रिवॉर्ड देती है। एक तरह से जब आपसे गेम खेलते हो, जैसे आपने चेस गेम करी उसमें आप जीते तब वो रिवॉर्ड मिलते हैं, 50 कौन सा प्लस होते हैं, 50 कौन सा माइनस होते हैं अगर आप लूज करते हो, तो वैसे ही रिफोर्समेंट लर्निंग काम करती है। जो चेस गेम है, लूडो गेम है, ओके, रिफोर्समेंट लर्निंग पे काम करती है। फिर आते हैं कैटेगरीज और एल्गोरिथम्स। वैसे तो बहुत सारी एल्गोरिथम्स की, वैसे डाटा साइंस में बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन जो मेन है वो ये 3 है: सुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग कौन सी होती है, जिसके अंदर फैकल्टी प्रोवाइड होता है, मतलब एक सुपरवाइजर होता है जो हमें गाइड करता रहता है और रिजल्ट के एक्यूरेट उसको रिजल्ट पता होता है पहले से ही। रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो होती है जिसमें हमें रिवॉर्ड, हमें जो हमने जो पास हिस्ट्री बेस पे हमने जो कुछ करा अगर वो अच्छा है तो उसमें रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब हमारे को बेनिफिशियल है तो हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है, और अगर गलत होता है तो हमें फिर उसकी पनिशमेंट मिलती है, ऑब्वियसली बात है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर ये होता है जिसका नाम हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर बनते हैं, मतलब इसके अंदर नॉलेज बहुत होती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर कुछ पता नहीं होता बेसिक से, हम खुद ही सीखते हैं इसके अंदर। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर देख सकते हो जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ type of machine learning algorithms that use a known data set to make decisions. You can see the example for many problem in their life, you provide solution for them. This type of learning is called supervised learning. इससे हम solution पता होते हैं, एक supervisor गाइडर हमारे साथ होता है जो हमें गाइड करता रहता है कि नहीं आपका ये आंसर आना चाहिए, तो इसके अंदर हम जैसे आंसर के पास पहुंचते हैं, हमें इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करें तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, इस सिचुएशन if a situation come up, the child will take an action on its own for his past experience, but not as a parent toward the end of the action tell him whether he did rude or wrong. Okay, then के बाद उसके बाद आती है सुपरवाइज लर्निंग की। अनसुपरवाइज लर्निंग की इसके अंदर क्या होता है, टेकिंग डिसीजन ऑन इट्स ओन अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। इसके अंदर वही होता है कि हमको गाइडर प्रोवाइड नहीं होता है, हम खुद अंडरस्टैंड करते हैं, खुद
एक्यूरेट रिजल्ट देखते हैं, इसके अंदर ज़्यादा नॉलेज होती है। इन सब में से सबसे ज़्यादा जो कैसे कह सकते हो आप बेनिफिशियल जो है सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग है, बिकॉज इसके अंदर हम खुद अंडरस्टैंड करते हुए चलते हैं, इसके अंदर ज़्यादा नॉलेज होती है। डाटा साइड क्या होता है? नाउ वी डू एनीथिंग अबाउट डाटा, हम कुछ भी करें उसके लिए हमें क्या चाहिए? डाटा, और डाटा सेट को ही हम डाटा कहते हैं। दिस नीड ऑल दिस फुलफिल्ड थ्रू डाटा सेट। A data set is a collection of set of information that is composed of separate element but can be manipulated as a unit by computer. डाटा सेट बेसिकली कलेक्शन डाटा सेट होता है। जितना ज़्यादा डाटा सेट होगा हमारे पास, जितना ज़्यादा हमारे पास डाटा होगा उतना एक्यूरेट हमारा रिजल्ट आएगा, जितना कम डाटा होगा उतना लेस एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ये कुछ पाइथन लाइब्रेरीज हैं जो हम डाटा साइंस में यूज़ करते हैं। numpy, sklearn। numpy क्या होता है? numpy बेसिकली एक मॉड्यूल है पाइथन का जो कि यूज़ होता है डाटा साइंस के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? डाटा का मैट्रिक्स बना देते हैं, एरे फॉर्मेट कर देते हैं, जिसकी वजह से इजीली वैल्यू मैच हो जाए। हम सारा न्यूमेरिकल डाटा सारा रिटर्न डाटा हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो कुछ भी जो डाटा होता है हमारा, अगर वो उसमें रिटर्न फॉर्मेट में है तो वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होगा पहले। अगर अब वो नहीं हो तो उसके वजह से क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग के अंदर यही होता है कि हम सारा न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करते हैं। sklearn क्या करता है? sklearn बेसिकली मॉड्यूल्स होते हैं जो एल्गोरिथम्स यूज करती है, जैसे क्लासिफिकेशन यूज होती है, रिग्रेशन यूज होती है, के फॉरेस्ट मीन यूज होती है। के मीन एल्गोरिथम सबसे बहुत मेन एल्गोरिथम है, ठीक है। फिर आता है पांडास और नमपाई सेम है, सेम काम करते हैं, लेकिन जो पांडास है वो एडवांस वर्जन है नमपाई का। नमपाई के अंदर हम A1 डायमेंशन कर सकते हैं, बट पांडास के अंदर हम 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन ऑल कर सकते हैं। पांडास जो है वो बहुत एडवांस वर्जन है नमपाई से। मैटप्लॉटलिब बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को स्ट्रक्चर और ग्राफिकल फॉर्मेट में। जैसे मैटप्लॉटलिब हो गया आपका, और आपका प्लॉट हो गया। अब हम कुछ भी उसको प्लॉट करना है ग्राफ को, डाटा को, तो हम मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं। एडवांटेज देख लेते हैं डाटा साइंस की। ये हेल्प करते हैं बिजनेस लीडर टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड स्टैटिस्टिकल नंबर ऑफ ट्रेंड्स। ये मतलब यूज के हम बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं डाटा साइंस को, जिससे हमारी जो बिजनेस की वो है, कहते हैं बिजनेस को हम और इंक्रीज कर सकें बाय यूजिंग अ बेटर डिसीजन मेकिंग अप्रोच। वो डाटा साइंस की वजह से हो सकता है। जितना ज़्यादा डाटा हम उसको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, उतना अच्छी जितनी हम अच्छी से ट्रेनिंग कर पाएंगे, उतना अच्छा हमें रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आज परसों अगर बारिश हुई थी और 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो हम प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं कि हाँ अगले दिन बारिश हो सकती है। लेकिन जितना हवा से चलता है डाटा होगा, अगर मान लो जितना टेम्परेचर में दिया हुआ है उस टेम्परेचर के हिसाब से, ह्यूमिडिटी के हिसाब से सब कुछ दिखा के तब हमारे पास आउटपुट होता है। वैसे डेटा साइंस वैसे ही काम करती है, जितना ज़्यादा डाटा होगा वैसे ही उस सिचुएशन में वो काम करती है। So data science is an extension of various data analysis fields such as mining, statistical prediction analysis and many more. Data science is a big call data. ये हम कॉरल कर सकते हैं डाटा, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से, किसी भी जगह से हम डाटा साइंस यूज कर सकते हैं और डाटा को क्वेल कर सकते हैं, मतलब डाटा को क्रैप कर सकते हैं, ठीक है। कहीं से हम क्रैप कर सकते हैं डाटा को, किसी भी जगह से। बस एक एल्गोरिथम यूज करनी है आपको, KNN करके, तो वो सारा डाटा आपको एक्सेल फाइल में या फिर CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल है इसके जो अमेजोन है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टमर परचेसिंग डाटा यूज करता है। दैट डाटा कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर डेमोग्राफिक, एज, जेंडर, लोकेशन, purchase history, past browsing history, etc. Based on this, Amazon segment customer data or pattern and recommend the right product to the right customer at the right time. Amazon जो है डाटा साइंस यूज करता है, जिसकी वजह से वो सही बंदे को सही प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। अगर उसका मान लो बजट इतना है तो उसको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा बजट उसके अंडर आता है, ये सब डाटा साइंस यूज होती है। अब लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। जो गूगल है, Google is self-driving car is a smart and driverless car. It collects data from environmental through sensors, make decisions like when to speed up and when to speed down, and when to overtake and when to turn.
It is all based on data science. Thank you.